दिस वन इज ऑल्सो पीच, दिस वन इज ऑल्सो पीच। ये नया है, ये पुराना है। आई विश इसकी पैकेजिंग थोड़ी डिफरेंट हो सकती, बिकॉज आई हैव वन हियर, बिकॉज कभी ऑफिस से कहीं जाना पड़े, एंड देन आई हैव वन एट माई होम, तो आई यूज दैट एवरी मॉर्निंग। यू नो, देर आर फ्यू प्रोडक्ट्स जो जब आप ट्राई करते हो ना एक बार, देन यू जस्ट कांट स्टॉप यूजिंग देम। एंड आज मैं कुछ ऐसे ही प्रोडक्ट्स के बारे में बात करने वाली हूँ जिनको, you know, no matter how many new launches I try, I will go back to them again and again and again. These are my ultimate favorites, tried and tested skincare, makeup, hair care and body care products, and trust me, I have repurchased them so many times that I can't even remember, and मुझे लगता है कभी अगर ये discontinue हो गए ना तो मैं तो रो ही पड़ूंगी। So let's dive into this video and let's see what are the products that I keep on repurchasing no matter what. So without further ado, let's begin. Right in front of me I have all the skincare products, all the hair care products that I love using, मेरे fragrances that I keep on repurchasing, and even though makeup products मैं कभी खत्म नहीं कर पाऊंगी जितना मेरे पास है, but these are some of the makeup products that I keep on repurchasing because I love them so much. तो start करते हैं with the skincare first. Let's start with the face washes first. I have two of them, and एक के बारे में तो मैं recently इतना ज़्यादा बात कर चुकी हूँ that I feel embarrassed talking about it again. So the first one is 2% salicylamide anti-acne face wash. इसमें 2% salicylic acid है, 2% niacinamide है. I love this even though I have dry skin, but ये बहुत अच्छे से मेरे स्किन के लिए काम करता है, and I like how smooth my skin becomes after using this. I mean, I have been using it for quite some time now. बहुत सारी ट्यूब्स मैं इसकी ऑलरेडी खत्म कर चुकी हूँ, and this is like a fresh one. The other one that I have is Simple का refreshing face wash. I think I have used around 2 to 3 tubes of this as well. This is a great face wash अगर आपकी dry या normal skin है, ये अच्छे से clean कर देता है. This is a soap free formulation and I feel for dry skin like me ये बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करता है. If you are somebody who has very dry skin, go for this one. If you are somebody who struggles with acne या फिर किसी भी skin type के हो, go for this one. I don't use a lot of toners, but there is this one product जो कि तुम भी जानते हो, I just can't live without, and that is Wishcare का Rose Water. I feel this is such an underrated product. I have not seen a lot of people talk about this, but ये जिस प्राइस में आपको मिलता है ना, I feel is a steal deal because this is very similar to Kama Ayurveda का Rose Water, but on a budget. And I have finished, I think, at least 5 to 6 bottles of this. This is like a new one I recently got and I absolutely love it. This is extremely calming, soothing. अगर आपको रोज़ की fragrances पसंद है, so इसकी मिस्ट ना आपके स्किन को अच्छे से हाइड्रेट भी करती है. Overall, it's an amazing product and I recommend this almost हर वीडियो में मेरे, इतना ज़्यादा पसंद है ये मुझे. Let's move on to moisturizer and I have like a few favorites of mine जो कि you know rotation में वही चलते रहते हैं. So the first one is Bioderma का Etoderm cream. Now this one is a fresh new tube. I go through one of these every single year, especially winters में मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है because this is something जो कि मेरी स्किन को ना फटने से रोकता है, मेरी स्किन को स्मूथ रखता है, and it kind of creates a film on your skin and उसकी वजह से moisture lock in रहता है. You can use this on your face and your body as well. तो ये body lotion का भी काम करता है, 2-in-1 product है, so you don't have to invest your money in another body lotion. और देखा जाए तो ट्यूब के साइज़ के हिसाब से this is pretty affordable. It's a very good cream and I think काफ़ी सारे डर्मैट्स भी इसको recommend करते हैं. So this has been with me since like a couple of years now and I don't think I will ever stop repurchasing this. Another cream that I have kept on repurchasing over the years is this one. ये है Nivea की ब्लू वाला डब्बा. I think every year मैं एक डब्बा ज़रूर खरीदती हूँ. आप इसको अगेन बॉडी पे यूज़ कर सकते हो, फेस पे यूज़ कर सकते हो. इनफैक्ट अगर आपकी क्रैक्ड हील्स भी हैं तो भी आप उसको उस पर यूज़ कर सकते हो. इट्स एक्सट्रीमली क्रीमी. सो अगर आपकी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है या फिर नॉर्मल टू ऑयली स्किन है, यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम दिस क्योंकि ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ऑयली बना देगा. दिस इज़ ग्रेट इफ़ यू हैव ड्राई और वेरी ड्राई स्किन. हाउएवर मैं इसको समर्स में यूज़ बिल्कुल नहीं करती हूँ. सो दिस इज़ अ क्रीम दैट आई वुड यूज़ फ्रॉम से नवंबर टू फेब्रवरी एंड रेस्ट ऑफ द ईयर ये ऐसे रखा रहता है. अनदर मॉइस्चराइजर दैट आई हैव बिन ऑब्सेसिंग ओवर एंड आई हैव रीपर्चेज्ड इट रिसेंटली इज दिस वन. ये है प्लम का राइस वाटर एंड नाइसिनामाइड क्लियर मॉइस्चर जेल क्रीम. दिस इज समथिंग दैट आई लव यूजिंग समर्स में बिकॉज इट्स एक्सट्रीमली लाइट वेट एंड समर्स में मॉइस्चराइजर ज़्यादा लगाने का दिल करता नहीं है. आई हैव नॉट लाइक इसको मैंने ऐसे बहुत बार रीपर्चेज नहीं किया है. I think this is my second tub only and I think I will keep on repurchasing this because it's a very nice light gel moisturizer that is perfect for summers.
लेट्स मूव ऑन टू एन अंडर आई क्रीम, क्योंकि अंडर आई क्रीम इज अ इम्पॉर्टेंट एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ माई स्किन केयर रूटीन एंड आई हैव बिन यूजिंग दिस वन फॉर द पास्ट 1 ईयर एंड मैंने इसकी आई थिंक 2 से 3 बॉटल खरीदी है. दिस इज लॉरियल पेरिस ग्लाइकोलिक ब्राइट 3% ग्लाइकोलिक प्लस विटामिन सी जी नायासिनामाइड आई सीरम. आई रियली लाइक दिस. आई विश इसकी पैकेजिंग थोड़ी डिफरेंट हो सकती, बिकॉज यू नो एवरी टाइम आई टेक दिस आउट अप्लाई एंड देन दिस गोज बैक इन टू दिस, तो ये मुझे थोड़ा सा ऐसे कंटामिनेशन का इशू लगता है. अपार्ट फ्रॉम दैट आई फील दैट दिस इज़ एन अमेजिंग प्रोडक्ट. मेरे डार्क सर्कल्स को ये इंस्टेंटली रिड्यूस करने में हेल्प करता है. लाइक आई हैव सीन कि जैसे बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स अगर हो रहे हैं मेरे एंड आई कीप ऑन यूजिंग इट फॉर मे बी जस्ट अ वीक, आई वुड सी लाइक अ ड्रास्टिक डिफरेंस मेरे अंडर आई बैग्स पे. आई एम गिल्टी ऑफ नॉट यूजिंग दिस रेगुलरली बट आई ट्राई टू यूज इट एज मच एज पॉसिबल. मेरे अंडर आई क्रीम्स के मामले में अगर कोई भी प्रोडक्ट मेरे को सूट करता है ना, आई जस्ट स्टिक टू इट. सो यू गाइज नो, इसके पहले मैं क्वेंच का मामा सीका वाला अंडर आई क्रीम यूज़ कर रही थी एंड आई जस्ट लव्ड इट टू बिट्स. एंड उसके पहले मैं मामा अर्थ का यूज़ करती थी. राइट नाउ दिस इज व्हाट आई एम यूजिंग एंड आई हैव बिन रीपर्चेजिंग इट फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ. Let's move on to some sunscreens, and this is an important aspect of my skincare. Body sunscreen as well as face sunscreen. तो मैं एक sunscreen नहीं, I use like a couple of sunscreen rotation में. So एक खत्म होता है दूसरा, दूसरा खत्म होता है तीसरा, and then I go back to the first one. So सबसे पहले है 1% hyaluronic sunscreen gel from the Dermaco. I've recommended it so many times. It's a very nice sunscreen. Skin को hydrate भी करती है but not टू मच, लाइक ऑयली ग्रीसी नहीं करती. इफ़ यू हैव ड्राई स्किन अच्छे से स्किन के अंदर अब्जॉर्ब हो जाती है एंड इट विल नॉट मेक यू स्वेट या फिर ऑयली नहीं फील कराएगा. इफ़ यू हैव ऑयली कॉम्बिनेशन स्किन तब भी आई थिंक यू कैन यूज दिस. द अदर वन दैट आई हैव यूज्ड एंड रीपर्चेज्ड इज दिस वन. दिस इज प्लम राइस वाटर एंड नाइसिनामाइड हाइब्रिड सनस्क्रीन. नाउ this one is also SPF 50 PA4+ and this one is also SPF 50 PA4+. The thing is that I have gotten comments under my videos that बहुत सारे लोगों को ये सूट नहीं करा है, बट फॉर मी दिस इज़ लाइक अ वेरी गुड सनस्क्रीन. द थर्ड वन इज़ दिस वन. ये है विश केयर की नाइसिनामाइड ऑयल बैलेंस फ्लूइड सनस्क्रीन. दिस वन इज द लाइट एंड मैट वर्जन. आई लाइक दिस वन ओवर द येलो वन. आई थिंक दैट वन इज मोर फॉर ड्राई स्किन बट आई फील दिस वन विल सूट ऑल स्किन टाइप्स, बिकॉज अगर आप सिर्फ इसको लगाओगे ना तो यू डोंट इवन फील कि आपने सनस्क्रीन लगाया हुआ. इट इज सो लाइट वेट. एट द सेम टाइम स्किन ड्राई नहीं फील होती. सो चाहे आपकी ऑयली स्किन हो चाहे आपकी ड्राई स्किन हो, यू कैन गो फॉर दिस वन. इट्स अ रियली गुड प्रोडक्ट. आई फील विश केयर के कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो यू नो दे आर शेफ्स किस एंड दिस वन इज वन ऑफ देम, एंड उनका रोज वाटर भी. Another wish care product I'm going to include here is their body sunscreen. I feel this is something that दूसरे brands को भी करना चाहिए. I feel अब हो गया होगा but they were the first one to come out with a body sunscreen that has SPF 50 and ये बहुत लाइट वेट है. तो समर्स में ना बॉडी लोशन लगाने का दिल तो करता नहीं है, बट दिस वन इज एक्सट्रीमली लाइट वेट. तो आप लगाओगे तो स्किन के अंदर झट से अब्जॉर्ब हो जाएगी एंड यू विल फील नथिंग ऑन योर स्किन. अदरवाइज ना वो चिपचिपा गीला ग्रीसी फील ना मुझे तो पसंद नहीं है समर्स में. सो समर्स में दिस इज़ अ ग्रेट सनस्क्रीन टू अप्लाई ऑल ओवर योर बॉडी. 500 रुपीज़ में आपको 200 ml प्रोडक्ट मिल रहा है विच इज़ ग्रेट एंड अ स्टील डील फॉर SPF 50. दिस इज SPF 50 एंड दिस गिव्स यू ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रोटेक्शन. UVA एंड UVB प्रोटेक्शन देता है ये. ओ बाय द वे दिस इज नॉन कॉमेडोजेनिक एज वेल एंड इनका ये वाला सनस्क्रीन भी नॉन कॉमेडोजेनिक है. लास्ट प्रोडक्ट जो मैं स्किन के कैटेगरी में ऐड करना चाहूँगी इज फॉर द लिप्स एंड आई थिंक आई जस्ट डोंट हैव टू से इट बट फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो मैं बोलने वाली हूँ इज दिस. ये है कप्स एंड लैशेस लिप स्लीपिंग मास्क. आई यूज़ इट फॉर माई लिप बाम या फिर लिप मास्क की तरह पर. ये मेरे बैग में रहता है, मेरी टेबल पे रहता है, मेरे बाथरूम में रहता है. आई हैव वन एवरीवेयर. दिस इज सच एन अमेजिंग प्रोडक्ट. आई मीन मेरे कहने पर सिर्फ इसको ट्राई करके देख लो. ट्रस्ट मी यू विल नेवर बी एबल टू गो बैक टू एनी अदर लिप बाम और लिप मास्क. इट्स स्मूथ, इट्स नॉन ग्रीसी, नॉन स्टिकी. आपके लिप्स को हील करेगा, रिपेयर करेगा एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पिगमेंटेशन को भी रिड्यूस करने में हेल्प करेगा. एंड ऑल ऑफ दैट इन जस्ट 299 रुपीज़. आई मीन दैट्स अ स्टील डील. ट्राई करके देखो एंड कमेंट करके जरूर बताना हाउ डू यू फील अबाउट इट. बाय द वे कप्स एंड लैशेस इज नाउ ऑन नायका, सो यू कैन ग्रैब दीज लिप मास्क फ्रॉम नायका एज वेल, जस्ट इन केस तुम नायका से कुछ शॉप कर रहे हो तो. ओके, सो दोज आर ऑल द स्किन केयर प्रोडक्ट्स. लेट्स मूव ऑन टू द हेयर केयर कैटेगरी विच आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट. आई थिंक पता है क्या होता है, जिसको जिस चीज़ से प्रॉब्लम होती है ना वो उस चीज़ को लेकर ज़्यादा पैशनेट होता है. आई एम रियली पैशनेट अबाउट माई हेयर केयर एंड दैट इज़ बिकॉज मैं अपने बालों से बचपन से लेकर आज तक परेशान ही रही हूँ. आई हैड लाइक रियली थिक कोर्स हेयर एंड बचपन में मेरी बहन मुझे झाड़ू की पूंछ कह के चिढ़ाती थी बिकॉज आई हैड
रफ हेयर, लाइक मेरे एंड्स ना एकदम लिटरली झाड़ू जैसे होते थे, एंड नो मैटर व्हाट आई डू वो ऐसे ही रहते थे. आई हैव लाइक रियली थिक हेयर. इतनी मोटी मोटी 2 चोटियाँ बनती थी, अब तो खैर सारे झड़ गए हैं, बट दैट्स हाउ माई चाइल्डहुड वॉज. आई कैन ओनली रिमेंबर एंड बी नॉस्टैल्जिक अबाउट कि मेरे बाल कितने अच्छे थे. दो क्वालिटी वाइज दे वर नॉट गुड. खैर, लेट्स कम बैक टू द हेयर केयर कैटेगरी एंड आई हैव अ फ्यू प्रोडक्ट्स जो कि मैंने यहाँ रखे हुए हैं, एंड कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने लिस्ट बना रखी है बिकॉज आई हैव टू बाय देम, और क्योंकि वो खत्म हो चुके हैं. सो स्टार्टिंग विद द शैम्पू, आई लव लॉरियल के शैम्पूज. लाइक दिस वन इज देयर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑयल नरिशिंग शैम्पू. ये खाली हो चुका है. आई हैव इट हियर बिकॉज यू नो आई जस्ट वॉन्टेड टू शो यू गाइज दैट आई लव दिस. आई ऑल्सो लव देयर हाइलुरॉन रेंज, वो भी मुझे बहुत पसंद है, एंड आई हैव रीपर्चेज्ड इट लाइक अ कपल ऑफ टाइम्स. एंड द थर्ड वन दैट आई लव फ्रॉम लॉरियल पेरिस इज देयर लिस अनलिमिटेड रेंज. ये पर्पल वाली जो आती है. आई लव द सीरम, उनका हेयर मास्क, उनका शैम्पू, तीनों ही चीज़ें दे आर लाइक शेफ्स किस. बहुत 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 अमेजिंग है. एंड आई रिमेंबर एट वन पॉइंट आई वॉज लाइक बैक टू बैक में वही चीज़ें परचेज कर रही थी. आई हैव नॉट बॉट इट येट अभी तक बिकॉज आई वॉज यूजिंग दीज. हाइलुरॉन वाला यूज़ करी थी, उसके बाद ये एक्स्ट्रॉर्डनरी ऑयल वाला यूज़ करी थी. एंड नाउ दैट आई एम डन विद दिस एंड मेरे पास कोई भी शैम्पूज भी नहीं बचे हैं बैकअप में, आई विल बी रिपर्चेजिंग द लिस अनलिमिटेड शैम्पू एंड कंडीशनर बिकॉज आई फील that's like my go-to. Okay, the other shampoo and hair mask that I absolutely love is Bee Blunt का intense moisture shampoo and their high shine mask जो ग्रे वाला आता है ना, वो दोनों का combination is like मेरे बाल दे जस्ट लुक एज इफ मैंने सैलो में कुछ हेयर वॉश कराया. इतने सॉफ्ट हो जाते हैं. और मेरा अभी हेयर मास्क रखा हुआ है, बाथरूम में है वो, बट माई शैम्पू इज ओवर, सो आई हैव टू डिसाइड विच वन आई वॉन्ट टू यूज, लाइक इफ आई वॉन्ट टू गो विद दिस वन और बी ब्लंट वन. बट दोज आर द 2 products that I keep repurchasing. I have like finished 2-3 bottles of Bee Blunt का shampoo as well, and it's like an amazing shampoo, especially if you have dry hair. So मैं भूल गई बताना आपको, I have like very dry hair and very dry scalp also. So I make sure कि जो भी shampoos मैं use कर रही हूँ वो मेरे बालों से जो है oil को ऐसे rip off ना करे. And all these shampoos that I've mentioned, they are very very good for dry or very dry scalp. मतलब पूरी body ही सूखी हुई है मेरी, dry है एकदम. Those were all the shampoos and the hair masks that I keep on repurchasing. Let's move on to hair oils. And I have advocated using organic hair oils time and again. Like तुम सरसों का तेल यूज़ करो, तुम कोकोनट ऑयल यूज़ करो, तुम ऑलिव ऑयल यूज़ करो, whatever works for you. And then my friend recommended me to use this. ये है कामा का भृंगादी तैलम. This is an intensive hair oil for hair fall control. तुम्हारे hair growth को promote करेगा. And I used like a small bottle of it and I loved it. ठीक है. It has a very beautiful Ayurvedic fragrance. Now remember Indie Wild का hair oil, I said that it doesn't have an Ayurvedic fragrance, but इसका fragrance बिल्कुल जैसे आयुर्वेदिक हर्ब्स को ब्लेंड करके जो आता है ना, जैसे फॉरेस्ट एसेंशियल्स की शॉप पे आता है, बिल्कुल वैसा है. इट्स नॉट टू स्ट्रॉन्ग बट द फ्रेग्रेंस इज देयर. तो अगर आपको फ्रेग्रेंसेस से प्रॉब्लम है देन दिस माइट नॉट बी समथिंग दैट यू वुड वांट टू ट्राई, बट आई लव्ड इट. ये आपके डैंड्रफ को भी कंट्रोल करता है, आपके हेयर फॉल को भी कंट्रोल करेगा, आपके हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करेगा. सो yeah, this is expensive and इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके यूज़ करती हूँ. and I have repurchased it like once only but I like it and I feel that अगर ये ख़त्म होती है तो I might repurchase it once again because it's a good product. अगर मैं हेयर सीरम्स की बात करूँ फॉर हेयर रीग्रोथ, देन आई थिंक हेयर ग्रोथ सीरम कॉन्सेंट्रेट फ्रॉम विश केयर इज़ वेरी वेरी गुड. मैंने पिलग्रिम का भी ट्राई किया था एंड आई लाइक दैट ऑल्सो. बेसिकली एनीथिंग दैट हैज़ रिडेंसिल, एनगन, बाइकैपल, बायोटिन, रोजमेरी एंड राइस वाटर, I would just buy it no matter what because this really works. ये भी काम करता है and I also like Pilgrim वाला भी. So you can go for any of those. Both of them are very very good. It's more about the ingredients, okay, than the brand name. और दोनों ही काफ़ी similarly perform कर रहे थे. So दोनों में से जो भी सस्ता मिल रहा है, ऑफर पे मिल रहा है ना, वो ट्राई कर सकते हो because I buy it that ways, okay. And if I talk about the hair serum जो hair length पे apply करना है, then I think this one is the one that I have repurchased the most. Apart from this, L'Oreal का जो extraordinary oil serum है, I've also finished around 2-3 bottles of that. दोनों का price point similar ही है, but it's more about what you like for your hair. ये थोड़ा सा thicker है, ज़्यादा hydrating है, if I can say so, and that one is
more lightweight, so it's basically about what your hair need. मुझे दोनों ही पसंद है, मैं दोनों ही बार बार खरीदती रहती हूँ. This one I like a little bit more than that one, but दोनों ही मुझे बहुत पसंद है. One last thing that I want to talk about is this hair gel, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बात करी थी. This is Gatsby soft holding gel. This is like level 2. Now I have flyaways, क्योंकि छोटे छोटे जो बेबी हेयर है वो मेरे उड़ते ही रहते हैं, and there are times like shooting video, तो ये अभी भी देखो आ गए, ये वापस से ये छोटे छोटे हेयर जो ये दिखने ही लग जाते हैं, एंड यू नो समटाइम्स इट्स अनोइंग. दिस हेयर जेल इज़ वेरी वेरी सॉफ्ट, आपके बालों को ऐसे होल्ड करके नहीं रखेगा, क्रंची नहीं बनाता है. आई कैन अप्लाई इट एंड माई हेयर विल बी इन प्लेस थ्रू आउट द डे, एंड एट द एंड ऑफ द डे व्हेन आई ओपन अप माई हेयर, मेरे बाल वापस से उतने ही सॉफ्ट हो जाते हैं. सो आई लाइक दिस एंड आई हैव परचेज्ड इट, लाइक दिस इज माई सेकेंड टब दैट आई एम यूजिंग, एंड ये भी आधा हो चुका है. सो या आई रियली लाइक इट एंड आई थिंक आई विल कीप रिपरचेजिंग दिस, बिकॉज मेरे बालों में ऐसे कोई बहुत ज़्यादा मुझे साइड इफेक्ट्स नहीं दिखा कि मेरा हेयर फॉल शुरू हो गया हो या मेरे बाल रफ हो गए हो, ऐसा कुछ मुझे देखने को नहीं मिला. सो आई एम प्रीटी हैप्पी विद दिस एंड आई विल रिपरचेज दिस अगेन एंड अगेन एंड अगेन. एक चीज़ जो है वो आई थिंक मिसलेनियस कैटेगरी में आती है, एंड वो है फेशियल रेजर्स. दीज आर कार्मेसी के फेशियल रेजर्स, एंड गाइज आई ट्राइड यूजिंग अदर फेशियल रेजर्स. आई एम नॉट गोना लाई, मुझे लगा था कि सारे एक जैसे ही तो होते हैं, बट no that's not the case. These are the best ones out there. They have a stainless steel का blade, and एक रेजर आप 4 से 5 बार आराम से यूज़ कर सकते हो. अगर आप अच्छे से यूज़ करो तो हो सकता है 1-2 बार और यूज़ कर लो. दे आर प्रिटी हैंडी, लाइक पकड़ने में भी आसान है, एंड द ब्लेड इज़ एक्सट्रीमली शार्प. जो छोटे छोटे हेयर है ना आपके फेस पे, पीच फज है, वो सब कुछ रिमूव करने में ये बहुत ज़्यादा कारगर है. सो आई थिंक दीज आर द बेस्ट वंस आउट देयर. लाइक जब भी नायका पे सेल आती है, मैं ये ज़रूर अपने कार्ट में ऐड कर लेती हूँ, बिकॉज आई विल नीड दीज एंड आई कीप ऑन यूजिंग देम एंड आई कीप ऑन repurchasing them. Let's move on to the next category, which is one of my favorites, and that is fragrances. Okay, so I have like a few of them that I have repurchased, because अभी मैं अपना fragrance का जो landscape है उसको थोड़ा सा expand करने की कोशिश कर रही हूँ. ठीक है, so I'll start with body roll-ons. There are 2 body roll-ons. मुझे नहीं पता मैंने कितने यूज़ कर डाले हैं. The first one is Wishcare. This one is an aqua fragrance. So ये बहुत ही मैं बोलूँगी न्यूट्रल काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस है. सो इफ़ यू आर अ बॉय और अ गर्ल, यू कैन गो फॉर दिस वन. आई विश कि ये लोग थोड़ा सा और फ्रेग्रेंसेस निकाले, बिकॉज इट्स अ गुड बॉडी रोल ऑन. द अदर वन दैट आई हैव यूज्ड, एंड आई थिंक आई हैव यूज्ड दैट मोर देन Wishcare, इज दिस वन. पैकेजिंग से समझ ही गए होगा. दिस इज Chemistad Play रोल ऑन्स, स्पेशली उनका पीच फ्रेग्रेंस. आई थिंक आई हैव यूज्ड ऑलमोस्ट 5 to 6 ऑफ दीज. ये वाला भी ख़त्म है. सो मुझे ना बहुत ही ज़्यादा ऐसे अर्दी नोट्स पसंद हैं, तो जो ऊद एकदम कामिंग और सूदिंग लगता है. सो व्हेन दे केम आउट विद ऊद, आई वांटेड टू ट्राई इट आउट, एंड आई fell in love with that one also. They also have a aqua variant जो मैं अपने husband को देके रखा हुआ, because I don't like their aqua fragrance, but the peach one is sweet, is tangy, it's like very feminine and I love it. Like this will make me smell good, at the same time पसीने की odor जो है ना वो बिल्कुल नहीं आएगी. Again, this one also will not control your sweat, but this will help you lighten your underarms, because इसमें भी 5% AHA है. So if you have darker underarms, you can try any of these. दोनों ही बहुत अच्छे हैं, and I तो will keep on repurchasing both of them because I love them to bits. The other fragrance, it's a body mist, and अगर आप मुझे बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हो, you know that I am a big fan of this body mist. In fact, I'm a big fan of this whole brand, and that is Plum K Body Loving Body Mist. Especially this one, Tupin Mimosa में. This is already half. This is already finished, and I think I don't even remember मैंने इसके कितने बॉटल्स ख़त्म कर दिए हैं. इसका परफ्यूम भी मैं यूज़ करती हूँ, उसकी भी 3-4 बॉटल्स मैं ख़त्म कर चुकी हूँ, बिकॉज आई जस्ट कांट गेट इनफ ऑफ इट. इसको लगा के मेरे को ऐसा लगता है मैं बस ऐसे संतरों के बीच में खड़ी हूँ. इट स्मेल्स so fresh, it is tangy, it's sweet, it's beautiful, and it's everything that I am. Like I like these kinds of fragrances. Okay, I also like their Hawaiian Rumba, but I like this one more. And इनके जो शार जेल्स है ना वो भी बहुत अमेजिंग. सेल के टाइम पे दे हैव लाइक अ बंडल ऑफ 5 शार जेल्स. आई गेट दैट क्योंकि उस पर मुझे और फर्दर डिस्काउंट मिल जाता है. सो यू गेट डिस्काउंट्स ऑन बंडल एंड देन यू गेट फर्दर डिस्काउंट्स ऑन सेल, तो वो काफ़ी ज़्यादा सस्ता पड़ जाता है. सो आई गेट 5 ऑफ देम इन अ गो, एंड देन पूरा साल या 6 महीने चलता रहता है, बिकॉज एवरीबडी यूजेस अ शार जेल इन आवर होम. ठीक है, सो दैट वॉज द बॉडी मिस्ट दैट आई विल रीपर्चेज नो मैटर वॉट, बिकॉज आई थिंक दिस इज माई फ्रेग्रेंस, माई काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस. ओके, इफ आई टॉक अबाउट अनदर बॉडी मिस्ट दैट आई एब्सोल्युटली लव, एंड दिस वन आई फील इज समथिंग जो कि हर किसी को पसंद नहीं आएगा. इट्स फ्रॉम बाथ एंड बॉडी वर्क्स. दिस इज देयर एट द बीच फ्रेग्रेंस मिस्ट.
It's like straight up beach because it has a strong coconut fragrance, like top note सिर्फ coconut है, and then it has a hint of vanilla to it. I don't like vanilla fragrances, but इसमें चलता है because it's masked with coconut. If you like coconut, like coconut की fragrance पसंद है, coconut oil की fragrance पसंद है, then you will love this. It's borderline coconut oil वाली fragrance, and I have repurchased it. You guys know this already, how much I love this fragrance. जो लास्ट फ्रेग्रेंस है जो कि आई हैव रीपर्चेज्ड इट काउंटलेस टाइम, एंड दैट इज़ मोआ बाय नायका की ये वाली फ्रेग्रेंस. यू गाइज हैव सीन मी टॉक अबाउट इट सो मेनी टाइम्स. आई जस्ट विश कि ये थोड़ी सी और लॉन्ग लास्टिंग होती. इट्स अ ब्यूटिफुल फ्रूटी स्लैश मस्की फ्रेग्रेंस एंड आई जस्ट लव इट. आई हैव वन हियर बिकॉज कभी ऑफिस से कहीं जाना पड़े, एंड देन आई हैव वन एट माई होम, तो आई यूज़ दैट एवरी मॉर्निंग. आई लव इट. आई जस्ट विश कि इसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी और ज़्यादा होती एंड दिस वुड लास्ट ऑन मी लाइक द एंटायर डे. तो बट हाउ आई मेक इट लास्ट, मैं इसको अपने सारे पल्स पॉइंट्स पे तो लगाती हूँ, एंड देन आई ऑल्सो स्प्रे दिस ऑन माई क्लोथ्स. तो जब आप कपड़ों पे कोई भी फ्रेग्रेंस को स्प्रे करते हो ना, दे टेंड टू लास्ट लॉन्गर देन ऑन योर स्किन. सो आई जस्ट मेक श्योर कि मेरे सारे कपड़ों पर भी इसकी फ्रेग्रेंस है, एंड देन ऑल्सो ऑन माई बॉडी, एंड दैट वेज आई जस्ट मेक श्योर कि ये थोड़ा सा ज़्यादा लास्ट करे. आई लाइक द फ्रेग्रेंस एंड दिस डजंट गिव मी हेडेक, तो आई कैन मेक डू विद द फैक्ट दैट ये ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, बट इट विल लास्ट ऑन यू फॉर 4 to 5 hours, एंड आई लव इट. आई परचेज्ड इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन, एंड आई विल keep purchasing it. Let's move on to the makeup category. Now makeup category में ना बहुत ज़्यादा products नहीं है because there are only few products that you actually run out. I mean the kind of work that I am in, मेरे पास इतना makeup है that will last like a century, but these are the products that you know expire हो जाते हैं तो आपको फेंकना ही पड़ता है, and then you have to buy again. So one such category is your mascara, and there are 3 mascaras that I absolutely love and I have repurchased them. The first one has to be this one. ये मेरी third tube है. Can you believe that this is like my third tube? This is Stays 929 mascara. I love this because this is a tubing mascara. तो इसको लगाओ and then if you want to just wash it off, तो आपको मेकअप रिमूवर की ज़रूरत नहीं है. जस्ट अप्लाई सम वाटर एंड जस्ट पुल इट आउट एंड ये बाहर आ जाएगा. नाउ अ लॉट ऑफ यू गाइज कंप्लेंट कि आपकी लैशेस को क्लम कर दे रहा है, तो बेस्ट वे टू यूज़ इट इज़ कि आप पहले एक्सेस को रिमूव कर लो, curl your lashes and then apply it and you will get the best result. That's how I use it and I love it. Also कभी कभार क्या होता है ना, मस्कारा जब फ्रेश होता है तो वो बहुत ज़्यादा लिक्विडी और रनी होता है, and that is why you might not get your desired results. But I like this and I have been repurchasing this and I will be repurchasing this again because of the fact that it is so easy to use and remove. Okay, the other one that I absolutely love is the Panorama mascara from L'Oreal. This one is slightly on the expensive side, but this is a great waterproof mascara. इसको remove करने के लिए एक बाईफेस मेकअप रिमूवर की आपको ज़रूरत पड़ेगी because this will not come off easily. But I like this because इसका ना silicone wand है, so when you bring this out, like आप इसको बाहर निकालते हो ना, you will never get extra product on the wand, and अपनी lashes को curl करने के बाद you just apply it and you will get the most beautiful feathery eyelashes. I like it for that. However, again इस मस्कारा के साथ में वो प्रॉब्लम है कि अगर ये फ्रेश है, नया है एकदम, तो लिक्विडी होगा एंड यू माइट नॉट गेट द रिजल्ट्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. सो इसको शुरू में 1-2 बार यूज़ करने के बाद रख देना एंड देन यूज़ इट आफ्टर अ वीक, एंड देन इट विल लाइक द फॉर्मूला जो है ना वो थिकन अप हो जाता है, एंड वंस द फॉर्मूला इज थिक यू विल गेट द मोस्ट ब्यूटिफुल फ्लटरी लैशेज विद दिस. I love this. And the last mascara that I love is an OG, and that is Maybelline Colossal Mascara. I have repurchased it time and again. I would not say that, oh, this is something that I keep on repurchasing. I would say that this is a mascara that I would buy sometimes. Like I have been loving the Stays mascara, so I'm repurchasing it, but this is something I'm like, okay, I'm done with this now, I want to go back to my roots, and this is where it all started. This is like one of my first mascaras I ever tried, and जब मैं इसको तब लगाती थी ना, everybody would ask me कि lashes पे क्या लगाया हुआ है. This separates my lashes, also make them voluminous, and it's affordable. I never run out of a product, okay, but this product, you guys know I only use this, and it's the concealer. This is Cuffs and Lashes liquid concealer. My shade is 06 and highlighting के लिए मैं 02 use करती हूँ. I have not run out of 02, but I have run out of 06 multiple times. This is my 3rd or 4th tube because I use only this concealer. It's very very good. Self setting है and almost full coverage है, and it's affordable as well. और जिसको मैंने ये recommend किया है ना, they have been very satisfied with the product. The fact that ये self setting है ना, ये बहुत amazing है because if you have dry skin like me, powder लगाना बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे, and using this
जस्ट एलिमिनेट्स द होल पाउडरिंग स्टेप, या फिर अगर मैं पाउडर करती भी हूँ तो बहुत लाइटली पाउडर करती हूँ. आई डोंट हैव टू लाइक पाउडर माई अंडर आइज कि क्रीजिंग ना हो. सो आई लाइक दिस एंड आई डोंट थिंक आई वुड एवर बी एबल टू गो बैक टू एनी अदर कंसीलर बिकॉज नाउ आई हैव दिस इन माई लाइफ. Another product that I will be repurchasing because I've just run out of it is this one. ये है Blue Heaven का Strobe and Shape Contour Sticks. This is magnificent deep. So एक deep है, एक light है. Go for the deeper one. I wish कि इससे भी deep होता इनके पास तो और अच्छा होता. Guys, this is like all done. खत्म है ये. मैं इसमें से अभी भी इसको निचोड़ रही हूँ बिल्कुल because this is a color that just complements my skin tone. I wish ये थोड़ा सा tad bit और cool होता तो और मज़ा आ जाता. I don't use the highlight side, but this contour side, it's not only convenient to use, it's easy to blend and it's affordable. So yeah, बहुत जल्दी order place होने वाला है इसका. I have dry skin and मेरे पास इतने powders है that I don't have to buy another powder, but I got myself another powder because I love it so much. And this is K Beauty का HD Setting Loose Powder. This is my second tub. You can see this is new. And अगर आप मुझे follow करते हो, you know that I have used this in the past. And क्योंकि वो expire हो गया था and I love this so much, I had to buy it again. This one is in the shade Banana because I feel इनका जो Banana shade है ना वो बहुत perfect है मेरी skin tone के लिए. I've used like कुछ दूसरे brands के भी Banana use करे and for some reason वो dark होते हैं and they just makes my under eye look so dark and ashy that I don't like it. इसका फॉर्मूला भी काफ़ी अच्छा है. इट्स नॉन ड्राइंग तो मेरी ड्राई स्किन को एक्सेसिवली ड्राई आउट नहीं करता बट इट सेट्स माई मेकअप इन प्लेस एंड आई लाइक दिस एंड here's the proof that I have repurchased it. एक और Blue Heaven का product है जो मैंने repurchase किया है and that is their Sculpt and Set Eyebrow Gel. This is in the shade brown. They have a grey shade also. This is I think my second or third tube. I think सबसे पहले मैंने brown use किया था, फिर मैंने grey use किया था, फिर मैंने brown फिर से order किया है. It's the best affordable eyebrow mascara out there. आपके eyebrows को ये set भी कर देता है, color भी add कर देता है. If you're in a hurry, eyebrows fill करने का time नहीं है, जस्ट इसको निकालो, एक्सेस को हटा देना, अदरवाइज मेसी हो जाएगा. सो जस्ट रिमूव द एक्सेस एंड यू आर डन. इट्स रियली बजट फ्रेंडली बट किसी भी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट के साथ में आप इसको कंपेयर कर सकते हो बिकॉज इट गेट्स योर जॉब डन वेल. As I mentioned, I usually don't run out of products, but this is another product that I keep on running out, and that's the compact powder. This is Cuffs and Lashes Perfect Finish Compact. I've hit pan again. This is my third pan. एक मेरा टूट गया था जब मैं हांगकांग गई थी तो वो टूटा हुआ मेरे घर पे रखा हुआ है. I have been using the टूटा हुआ version. I just love it because it's very lightweight and it doesn't add a lot of coverage to your makeup. So अगर आपने मेकअप किया है, बीच में touch-ups करने हैं, touch-ups करने के लिए बहुत अच्छा पाउडर है because this will take away all the oiliness from your face but it will not add on to your makeup. You know, समझ रहे हो मेरी बात की? कवरेज नहीं बढ़ाएगा, प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा ऐड ऑन नहीं करेगा. इट्स वेरी फाइन, वेरी थिन लेयर जो है वो आपके फेस पे ये अप्लाई करता है. एंड दैट वाज द लास्ट प्रोडक्ट. बहुत देर से मैं लगातार बोले जा रही हूँ बट गाइज ट्रस्ट मी, दीज आर द प्रोडक्ट्स दैट आई हैव ट्राइड एंड टेस्टेड ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन एंड आई एम टोटली मेस्मराइज्ड विद ऑल ऑफ देम. अगर आपने इनमें से कोई भी प्रोडक्ट्स ट्राई करे हैं बिकॉज आई नो आई हैव रिकमेंडेड देम इन द पास्ट एंड ऑल ऑफ देम आर chef's kiss. So what are your thoughts about them? Let me know in the comments. What are some of your favorites ride and die kind of products जो कि आप बार बार खरीदते रहते हो, you keep on repurchasing? Let me know in the comments. The comment section is open and yeah, that's it for this one. I will see you guys in my next video. Till then, take care. Bye.